Hello students, today we will continue the same chapter, chapter number 11, force and the pressure. This is the third part of this chapter. In first and second part we have already learned about the force, types of the force, effects of the force. Okay, ये सारा कि आपां force बारे सारा पढ़ चुके, ठीक है। इस पार्ट दे विच आपां करांगे pressure बारे पढ़ना, ठीक है। In your daily life ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਫੈਕਟਸ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। In your daily life you observe that your mother having knives sharpened from the time to time। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। A carpenter when hammering a nail select those nails that have pointed ends। ਜਿਹੜਾ कारपेंटर है वो कि nails ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ यूज़ करता जिन्हां ਦੀ ਕੀ है pointed ends ਹੋਣ, ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ end है ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਨਾ ਹੋਵੇ end ਤੇ कारपेंटर ਕੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ nails ਨੂੰ यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं यूज़ करता देखो अगे पढ़ांगे आपां। आयरन नेल्स एंड द पेपर पिन्स आर बोर्ड एट द टॉप एंड वेरी फाइन एट द बॉटम। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਰਨ ਨੇਲਸ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਪਿੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੋਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸ ਕਰਦੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੱਲੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Similarly, you find difficulty to walk on a sandy road with heels that on metalled tar roads। Similarly ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਡੀ ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀਲਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਟਾਰ ਰੋਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੈਂਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਲਸ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਟਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਈਫਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, all this is because of the pressure which is related to force। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। means smaller the area in contact of the two bodies greater is the effect of the force। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਨੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਓਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੇ ਦੈਟ ਦੀ ਸਮੋਲਰ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੋਲਰ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਸਮੋਲ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਔਰ ਥਰਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਇਨ ਦੀ ਪਾਸਕਲ ਯੂਨਿਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਸਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਕਲ, PA 1 PA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊਟਨ 1 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो यही है pressure is measured in the pascal, since pressure force upon area the pascal is equal to newton meter per second, ठीक है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो फोर्स है ना, प्रेशर है ना जिहड़ा, एक है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल मीनस जिन्नी ज़्यादा फोर्स उन्ना ज़्यादा प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट की है फोर्स ते मैगनीट्यूड ते डिपेंड करता है, सैकेंड की है ग्रेटर द एरिया ऑफ द सरफेस स्मॉलर इज द प्रेशर एंड द वाइस वर्सा। हुण प्रेशर है जिहड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि जिन्ना ज़्यादा एरिया उन्ना ही प्रैशर की होगा, डिक्रीज़ होगा। जिन्ना घट प्रैशर, जिन्ना कि स्मॉलर एरिया होगा, स्मॉलर दी एरिया ग्रेटर इज़ दी प्रैशर, एरिया घट होगा प्रैशर ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रैशर की होगा, घट होगा। ये दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रैशर है जोड़ा किन्ने फैक्टर्स के उत्ते डिपेंड करता है, एक तो की है मैगनीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो एक की है एरिया के उपर डिपेंड करता, दो चीज़ों के उपर डिपेंड करता। ठीक है, प्रैशर। हुण आपां पढ़ांगे, ये हो गया अपना फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द स्टडी ऑफ द फ्लूइड, द यूनिट ऑफ द प्रैशर इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। ब्लेस पास्कल है जिन्हें इनू की है स्टडी किया सी, इसलिए यूनिट की है प्रैशर की उहदे नाम ते की है प्रैशर की यूनिट की रखी गई है, इसलिए दी यूनिट की है पास्कल है। ठीक है, हाँ जी। नैक्सट है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर इन आर डे टू डे लाइफ, देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द प्रेशर। हुण आपां की अपनी डेली रूटीन दे विच बहुत सारी एप्लीकेशनस देखते हैं फोर्स ते प्रैशर दियां। ठीक है, प्रैशर एग्जर्टेड इज़ डिपेंडेंट ऑन द फोर्स अप्लाइड एंड द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द अबव सैक्शन। हुण आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्रैशर है दो चीज़ों के उपर डिपेंड करता है, एक फोर्स के उपर, सैकेंड की है एरिया के उपर डिपेंड करता है। इन योर सराउंडिंग्स यू सी दैट ऑल द पर्सिंग एंड द कटिंग टूल्स सच एज नाइव्स, नीडल्स, नेल्स, वेजेस, pair of the scissors etc have very sharp edges such that more pressure is applied on the application of the small force। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अपने सराउंडिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਫਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਡਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜਸ ਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ज़्यादा ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ। ठीक है, ताकि देखो हैव वेरी शार्प एडजस दैट द मोर प्रैशर इज़ अप्लाइड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्मॉल फोर्स। मतलब कि आप जो भी प्रैशर अप्लाई करांगे तो अपन फोर्स की घट लगानी पऊगी। ठीक है, क्योंकि ये शार्प एडजस क्यों बनाए जाते हैं कि जो भी आप प्रैशर अप्लाई करना है तो अपन फोर्स की है घट लगानी पऊगी। ठीक है, इन अ नंबर ऑफ केसिस एरिया इज़ इनक्रीज टू रिड्यूस प्रैशर। हुण की कुछ इदां दे केसिस हुंदे कि जिथे कि आप प्रैशर नूं रिड्यूस करना है, तो उस प्रैशर नूं रिड्यूस करन दे लई आपां की कर दिंदे आ एरिया इनक्रीज कर दिंदे आ। हुण आपां पढ़िया सी कि इफ एरिया इनक्रीजेस प्रैशर विल बी स्मॉल, जो आपां एरिया इनक्रीज कर देंगे तो प्रैशर की घट जाऊगा। ठीक है, द टायर ऑफ द ट्रक आर मेड ब्रॉड एंड थिक। हुण ट्रक के जिहड़े टायर्स ने वो क्या ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा चौड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, सो दैट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द हैवी व्हीकल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज एरिया। हुण जिहड़ी फोर्स है, ठीक है, हुण उहदे विच बहुत ज़्यादा भार रखा जाता है, हैवी व्हीकल्स करके ज़्यादा भार होने करके वो की करता है लार्ज एरिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर उत्थे की हो जाता है प्रैशर की हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रैशर की हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ਹੁਣ सिमिलरली की है पिलर्स ऑफ द फ्लाईओवर अ डैम और अ ब्रिज हैव अ ब्रॉड बेस। हुण फ्लाईओवर देख लैंदे आपां जिहड़े पुल बने हुंदे इन्हां दे पिलर्स किन्ने ज़्यादा की है मोटे मोटे हुंदे, एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुंदा बेस दा। ठीक है, फ्लाईओवर्स ते डैम्स ब्रिजेस इन्हां दा सारिआं दा की है जिहड़ा बेस है वो बहुत ज़्यादा की है ब्रॉड रखा जाता, सो दैट द प्रैशर ऑफ द हैवी ब्रिजेस डैम और फ्लाईओवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पिलर्स, ताकि जिन्ना भी प्रैशर जिहड़े हैवी ब्रिजेस डैम्स का जिन्ना भी प्रैशर है वो की है या फोर्स है वो की है ना पिलर्स के उपर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो प्रैशर की हो जाए रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ऑल द स्टेट्स ऑफ द मैटर, जिन्नियां भी स्टेट्स ऑफ मैटर्स किहड़ियां सॉलिड लिक्विड गैस है ये भी की करती हैं प्रैशर एग्जर्ट करती हैं सराउंडिंग्स के उपर। इन सम केसिस द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रैशर इज़ विजिबल।
कुछ केसेस दे विच आपां नूं की है प्रैशर दिखाई दिंदा है बट नॉट इन अदर्स सच एज वी नॉर्मली डू नॉट रियलाइज द प्रैशर एग्जर्टेड बाय द एटमोसफेरिक एयर। हुण आपां एटमोसफेरिक एयर दा प्रैशर नहीं देख सकते, अपने उपर भी की है एयर दा की है प्रैशर लग रहा है, एटमोसफेरिक प्रैशर की आपां नूं ऑब्जर्व कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है। ऑन आर बॉडी और द प्रैशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड स्टोर्ड इन अ टिन और अ ग्लास टंबलर। होर जिहड़ा की है जिहड़े ग्लास टंबलर जां आपां टिन दे विच जिहड़ा आपां की लिक्विड स्टोर करके रखते हैं उहदे उपर भी प्रैशर लग रहा है, उहनूं भी आपां की ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। जस्ट लाइक सॉलिड्स एंड द लिक्विड गैसिज टू एग्जर्ट द प्रैशर। हुण सॉलिड ते लिक्विड की तरह गैसिज भी ने जिहड़ियां की है प्रैशर एग्जर्ट करदियां ने, ठीक है, वो भी प्रैशर अप्लाई कर दी। दे एग्जर्ट द प्रैशर ऑन द बॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैसिज की कर दी जिहड़ियां कंटेनर हुंदा उहदे वॉल्स दे उपर की प्रैशर एग्जर्ट करदियां। दे आर कंटेनिंग जिहड़े भी बर्तन दे जिहड़े कंटेनर दे विच गैसिज नूं पाया जांदा वो की करदियां उन्हां दे वॉल्स ने जिहड़ियां उत्थे की प्रैशर एग्जर्ट करदियां, ठीक है। वैन वी ब्लो एयर इन अ बैलून। हुण जदों आपां की बैलून नूं की करदे आ ब्लो करदे आ इट एक्सपैंड्स एंड गैट इनफ्लेटेड। हुण आपां देखदे हां बैलून दे विच जदों हवा पाउने तो की हो जांदा एक्सपैंड हो जांदा ते फुੱਲ जांदा, ठीक है। डू यू नो वाई इट हैपन। हुण ये क्यों हुंदा है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द एयर इनसाइड द बैलून। हुण जिहड़ी की है बैलून दे अंदर एयर सी उन्हें की कीता बैलून एग्जर्ट द प्रैशर ऑन द इनर वॉल्स। जिहड़ियां उहदियां इनर वॉल्स सीगियां उन्हां दे उपर की प्रैशर अप्लाई कीता, ठीक है। इफ़ वी ब्लो इन टू मच एयर। हुण जे आपां बहुत ज़्यादा एयर उहदे विच पाने आ बैलून दे विच द मटीरियल ऑफ द बैलून इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एक्सपैंडिंग फर्दर। हुण बैलून की उस एयर नूं होर ज़्यादा की समा नहीं सकदा, इसलिए की हो जाता है प्रैशर इनक्रीज़ होने करके द इंक्रीजिंग प्रैशर इनसाइड कैन कॉज द बॉल ऑफ द बैलून टू ब्रेक एट वन एंड मोर पॉइंट्स। इस करके जो प्रैशर की है ज़्यादा हो जाता है तो बैलून की हो जाता है फट जाता है, ठीक है। दिस इज़ द रीजन दैट द बैलून बर्स्ट वैन टू मच एयर इज़ ब्लोन इनटू इट। ये रीजन है कि जो आप बहुत ज़्यादा एयर की बैलून दे विच पाने आ इस करके वो की हो जाता है फट जाता है, ठीक है। देखिए बलून है पहला वो की सी सिंपली इदां सी, ठीक है। हुण जदों आपां उहदे विच की है एयर एग्जर्ट कीती हुण आपां की करांगे एयर नूं की है विच पावांगे तो की करूगा बैलून है जिहड़ा हौली हौली की है ब्लो करना स्टार्ट हो जाऊगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ी एयर आपां पाई है उहने की कीता इन्हां दे जिहड़े इनर वॉल्स ने उहदे उपर की है प्रैशर क्रिएट किया, प्रैशर एग्जर्ट किया तो बैलून की ब्लोन होने लग गया, बैलून की फुलन लग गया, ठीक है। जो आप बहुत ज़्यादा एयर ये पावे तो बैलून जो हर एक पॉइंट के उत्ते की प्रैशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए की हो जाता है बर्स्ट आउट हो जाता है, ठीक है। इन लिक्विड द प्रैशर एग्जर्टेड बाय दैम डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड्स के विच की है प्रैशर है जो वो डिपेंड करता कि उपर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ और हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज़ प्रेजेंट। हुण लिक्विड डेंसिटी के उपर डिपेंड करता जो प्रैशर है लिक्विड के डेंसिटी के उपर डिपेंड करता जां कितनी ज़्यादा डेप्थ है वो उपर डिपेंड करता, हाइट के उपर डिपेंड करता कि कंटेनर की कितनी हाइट है, ठीक है, ये उसके उपर डिपेंड करता प्रैशर। हुण यही आपां इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड, लिक्विड का ही आपां देखना है, ठीक है। एनी सबसटांस दैट हैज़ वेट एग्जर्ट द प्रैशर। कोई भी सबसटांस जिहदा वेट आ वो हमेशा की करता है प्रैशर एग्जर्ट करूगा ही करूगा। लाइक सॉलिड का भी वेट होंदा, लिक्विड का भी वेट होंदा, ठीक है। Therefore, they also apply the pressure on the walls and the bottom on of the container in which they are poured out the place। इसलिए कि ये भी की करते हैं प्रैशर एग्जर्ट करते हैं जिहड़े भी कंटेनर दे विच कि लिक्विड नूं पोर किया जाता रखा जाता है उस दे उपर की करते हैं प्रैशर एग्जर्ट्स करते हैं, ठीक है। इफ़ यू डिप योर फिंगर इन टू अ लिक्विड। हुण कोई भी लिक्विड है अगर आप उहदे विच की फिंगर डिप करते हैं यू कैन फील अ प्रैशर सिक्यूजिंग योर फिंगर। हुण आप उत्थे की करते हैं प्रैशर नूं फील करते हैं, ठीक है। प्रैशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। हुण जिवें जिवें डेप्थ की प्रैशर की करते जिवें जिवें डेप्थ नूं इंक्रीज़ करते उवें उवें की प्रैशर की इंक्रीज़ हुंदा, ठीक है। मोर यू डिप योर फिंगर इनसाइड द लिक्विड। हुण आपां उसदी की डेप्थ वधाती, ठीक है। हुण जदों आपां की फिंगर डिप करांगे मोर यू फील द प्रैशर सिक्यूजिंग योर फिंगर। हुण अपनी फिंगर के उपर उन्ना ही ज़्यादा की होगा प्रैशर लगूगा, ठीक है। वैन अ बॉडी इज़ कंप्लीटली इमर्सड इन अ लिक्विड। हुण जदों कि बॉडी है जी उन्होंने आपां की लिक्विड दे विच डुबो देंगे, ठीक है। द
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਾਈਡਸ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਮਰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਦੀ ਡੈਪਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਦਰ ਡਾਊਨ ਯੂ ਗੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਅਬਵ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਦੀ ਡੈਪਥ ਕੈਨ ਬੀ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਪਰੇਟਸ। ਹੁਣ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਡੈਪਥ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੈਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੋਲਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਪਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕੈਨ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ डिफरेंट ਕੀ ਹੈ ਹੋਲਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਦ ਕੈਨ ਇਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਰਟਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹੋਲਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਸ਼ਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਟ ਦੀ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਡੀਪਰ ਦ ਹੋਲ farther the water travels as it leaves the hole। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਸ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਇਕੁਅਲ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਲਸ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਹੋਲਸ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਫਾਸਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਈਚ ਹੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਕੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਵਾਟਰ ਐਟ ਦਿਸ ਡੈਪਥ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਇਨ ਆਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਵਰਕ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, exerted by the water, it is same pressure due to which we observe water coming out leaking joints and the holes in the pipe। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਓਨ ਲੈਵਲ when water or any other liquid is poured into the communicating tubes, it stands at the same level in each tube. This illustrates the water finds its own level। ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਦਾ। ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਿਕੁਇਡ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਲੈਵਲ, ਹੁਣੇ ਕਿ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਾਟਰ ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਓਨ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਟਰ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਨ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ ਇਨ ਦੀ ਵੈਸਲ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸੇਮ ਐਟ ਆਲ points along the same horizontal level। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
along the same horizontal level ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਵੁੱਡ ਮੂਵ ਅੰਟਿਲ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਡ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਵਾਟਰ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪੋਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਵਾਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੇ टाइम बाद कि सैट हो गया, इन्हें अपना प्रेशर किया हर एक पॉइंट के ऊपर के इक्वल कर लिया। ठीक है, द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टैंड्स एट द सेम वर्टिकल हाइट इन ऑल द ट्यूब्स वट एवर देयर शेप कन्फर्म्स दैट फॉर अ गिवन लिक्विड द प्रेशर एट पॉइंट्स विदिन इट वेरीज ओनली विद द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द बॉटम बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हुण इत्थे की करदा है जी कोई भी शेप होवे ट्यूब की उस दे उपर डिपेंड नहीं करता, ये की करदा अपने आप ही वेरी करूगा, अपने आप ही उत्थे की है अपने आप नूं सैट करूगा, उस सरफेस के उत्ते अपने आप ही अपना लैवल की है सैट कर लैंदा। ठीक है, मेजरिंग प्रैशर, प्रैशर नूं आपां किद्दां मेजर करांगे। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रैशर ऑफ अ लिक्विड एट डिफरेंट डेप्थ इज मैनोमीटर। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੋਮੀਟਰ। ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਅ ਯੂ ਟਿਊਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਸੇ ਵਾਟਰ ਔਰ ਅ ਮਰਕਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਬੋਥ ਆਰਮਸ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ, ਦ ਸੇਮ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਔਨ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ of A and B and these are at the same horizontal level। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ओपन करके देखा कि इन्हां दे उपर जिहड़ा एटमोसफेयरिक प्रेशर लग रहा है वो इक्वल है, इसलिए इन्हां दा की है लैवल भी की है सेम है। ठीक है, ए पॉइंट का भी बी पॉइंट का भी। इन ऑर्डर टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस, हुण आपां की गैस का प्रेशर मेजर करना, द साइड ए इज़ कनैक्टेड टू अ गैस टैप बाय द लेंथ ऑफ द रबर ट्यूब। हुण आपां की करदे हां जिहड़ी ए है इहनूं की रबर ट्यूब दे नाल की है इहनूं की है की कर देंगे बंद कर देंगे। ठीक है, वैन द टैप इज़ टर्नड ऑन, जो आप की करते हैं टैप नूं की टर्न ऑन करांगे, टैप इज़ टर्नड ऑन द गैस एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द सरफेस ए। ठीक है, हुण इस तरह की आप ए पॉइंट सीगा जिहड़े नूं गैस टैप दे नाल की करता जॉइन करता। इत्थे की जिवें आ के कोई फनल है, प्लास्टिक फनल है, जां आपां कह सकदे कोई भी गैस वाला। ठीक है, इनू लैवल ए दे नाल आपां की सैट कीता। हुण आपां इनू ऑन कीता, इत्थों गैस गई पॉइंट ए दे उपर लगी, उहने की कीता प्रैशर एक्सर्ट कीता ते वाटर है जिहड़ा इत्थे की डिक्रीज़ हो गया, इत्थों की लैवल की उहदा इनक्रीज़ हो गया। हुण इत्थे पहला वाटर दा लैवल की सी ए सी, इनू आपां मार्क कर लांगे। ठीक है, हुण जदों आपां की प्रैशर एक्सर्ट कीता तां इस लैवल तो वाटर है जिहड़ा कि इन्ना उपर चला गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लैवल गिव्स द अप्लाइड प्रैशर। हुण इन्हां दे विच जिहड़ा डिफरेंस होगा वो कि आपां नूं प्रैशर दसूगा कि कितना प्रैशर लग्या, इस करके कि वाटर लैवल की है इनक्रीज़ हो गया। यू कैन मेक योर ओन प्रैशर डिटेक्टर, टेक अ प्लास्टिक ट्यूब। आपां की अपना प्रैशर डिटेक्टर है जिहड़ा आप ही बना सकते हैं कि प्लास्टिक ट्यूब लवांगे, प्लास्टिक फनल लवांगे, कवर इट्स माउथ टाइटली विद द रबर बैलून। उन्हें इहदा की इहनूं की रबर बैलून दे नाल इहनूं की टाइट कर देंगे। कनैक्ट द स्टेम ऑफ द फनल टू द रबर ट्यूब ऑफ द मैनोमीटर एज शोइंग इन द फिगर बाय प्रेसिंग द रबर। इत्थे एक की बैलून ले लांगे आपां। ठीक है, इत्थे की बैलून लिता, उस बैलून नूं जदों आपां टैप करांगे तो उहदे उपर की प्रैशर लगूगा। बाय प्रेसिंग द रबर बैलून यू कैन चैक दैट द लैवल ऑफ द वाटर इन द अदर आर्म ऑफ द ट्यूब राइजेस। इत्थे की इस फनल लिता होया, इत्थे आपां की एक बैलून भी लै सकते हैं कि इस प्लास्टिक ट्यूब नूं आपां की बैलून दे नाल अगर आपां इहनूं की फिक्स कर देंगे। हुण बैलून दे विच की एयर है, जदों इहनूं आपां की करांगे प्रैस करांगे तो वो एयर है जिहड़ी इस पॉइंट ए दे उपर की प्रैशर एक्सर्ट करोगे तो वाटर लैवल की होगा इनक्रीज़ हो जाएगा। यू कैन चैक द लैवल ऑफ द वाटर इन द अदर आर्म ऑफ द ट्यूब। यू कैन यूज़ दिस प्रैशर डिटेक्टर टू शो दैट द प्रैशर इन द लिक्विड इनक्रीजेज एट द डेप्थ। इत्थे आपां नूं कि शो कर रहा है कि प्रैशर है जिहड़ा लिक्विड दा वो कि डेप्थ दे नाल की हो जाता है इनक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अज आपां प्रैशर बारे पढ़िया।
ठीक है। सब तो पहला आप प्रैशर हुंदा कि डेफिनीशन उहदियां यूनिट्स उहदा किहड़े फैक्टर्स इफैक्ट करदे आ उहनूं, ठीक है। ये सारा कि फॉर्मूला पढ़िया प्रैशर का। फिर आप कढ़िया कि इनू रिड्यूस किवें कीता जांदा है प्रैशर नूं। पहला आप की कीता सी कि प्रैशर नूं इनक्रीज़ किवें करदे आ, ठीक है। फोर्स घट लगे प्रैशर ज़्यादा होवे उहनूं किवें करदे आ, उहदे एजिस नूं कि शार्प करदे आ। फिर आप देखिया कि उहनूं रिड्यूस किवें करांगे। अगर प्रैशर नूं आपां रिड्यूस करना तो आप की करदे आ, एरिया नूं की कर दिंदे आ, इनक्रीज़ कर दिंदे तो प्रैशर अपने आप की रिड्यूस हो जाता। फिर आप देखिया कि प्रैशर की है स्टेट्स ऑफ मैटर के उपर भी की लगता है प्रैशर लगता है, जिवें सॉलिड लिक्विड गैसिज के उपर देखिया आप, ठीक है। ਜਿਹੜੀ भी कोई फिर आप देखिए कि कोई भी सबसटांस है जिसका की है वेट होगा उसके उपर की है प्रैशर एग्जर्ट होंदा ही होंदा है, ठीक है। ये आप देखिया। फिर आप देखिया कि प्रैशर नूं आप मेजर किवें कर सकते हैं, वो आप किहदे नाल देखिया मैनोमीटर दे नाल देखिया, ठीक है। अज आप प्रैशर देखिए ये सारा की आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हुण आपां कि कुछ इहदा क्विक रिव्यू है जिहड़ा करांगे ते कल आपां नैक्सट वीडियो दे विच करांगे एटमोसफेरिक प्रैशर बारे पढ़ांगे ते दैन अपना की चैप्टर कंप्लीट। फिर आपां बैक एक्सरसाइज करांगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ने फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। द प्रैशर इन अ लिक्विड डैश विद द डेप्थ। डेप्थ दे नाल की है प्रैशर की हो जाता है इनक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यही पढ़े से आप द प्रैशर एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड उन्होंने आप की कहने लेटरल प्रैशर। प्रैशर एट द सेम डेप्थ इन अ लिक्विड एक्ट्स डैश इन ऑल द डायरैक्शन। हुण प्रैशर नूं अगर आप सेम डेप्थ के उपर लगाने आ, इत्थे आप देखिया सी प्रैशर एग्जर्टेड बाय दी, ठीक है। प्रैशर नूं अगर सेम डेप्थ के उत्ते क्या करता है इक्वली एक्ट करता हर एक डायरैक्शन के उपर, ठीक है। अ लिक्विड फाइंड इट्स ओन लैवल, अपने आप ही अपना लैवल किया फाइंड डिसाइड कर लेंदा, ठीक है। नैक्सट की ट्रू फॉल्स। लाइक सॉलिड लिक्विड फ्लूइड डू नॉट एक्सर्ट द प्रैशर, गलत है, ये प्रैशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। एयर डज नॉट एक्सर्ट द प्रैशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, ये भी गलत है। ए मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रैशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, सही है। लिक्विड का प्रैशर आप किहदे नाल यूज़ करते हैं किहड़े इंस्ट्रूमेंट नाल, मैनोमीटर दे नाल, ये क्या ट्रू है, ठीक है। अज इन्ना ही, कल आप करांगे एटमोसफेरिक प्रैशर, कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाऊगा, ठीक है। थैंक यू।